کہ آپ تھوڑا سا یہ کیا کریں, زندگی کو سیریس لیا کریں, ہر چیز کو سیریس لیا کریں, معاشرے میں رہتے ہیں اس کو سیریس لیا کریں, ہر چیز کو سیریس لیا کریں, آنکھیں بند کر کے, یعنی جہاں دل کیا پڑا جب دل کیا چڑھا, ٹھیک ہے, دیکھا کریں. یعنی کہ ایک بندہ سوپر بھی کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں, آنا ہے جاننا ہے کیا جگہ ہے, اتنے پہلے کون سی جگہ میں پہلے پوزیشن سیٹ کر لوں, نہیں وہ بیٹھے پتہ نہیں پتہ نہیں کیا جا رہا ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا ناشتہ کیا ہے, اپنا ناشتہ کیا ہے, آدھا گھنٹہ گپے ماری جا رہی ہے. تم اپنا لیکچر یعنی کہ پرانا یعنی کہ دیکھو, اس کو ریوائز کرو, ایک دوسرے سے سنو, اپنی پوزیشن سیٹ کرو, یہ دیکھو, اس لیے یہ مقصد ہوتا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جی اس کو کیا کہتے ہیں, عامل اذن یعنی غم کا سال. کلیئر ہے جی, یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مطلب پیریڈ ہے, یہ جو دور ہے, یہ یہاں تک اینڈ ہو گیا. اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں, اس سے ہم آگے یہ دیکھیں کہ اب یہ جو حالات ہے نا, آپ خود دیکھیں تھوڑی سے, تو کیا یہ حالات اچھے حالات ہیں؟ یہ انتہائی ایک قسم کے کیا ہیں, برے حالات ہیں, کہ جس میں اب حضور پاک کو جو سب سے بڑی سپورٹ حاصل تھی, ٹھیک ہے نا, ان کے جو بزرگ تھے, کیا نام ہے, حضرت ابو طالب, وہ دنیا سے کیا ہو گئے, رخصت ہو گئے. اور ان کی جو زوجہ ہے پہلی خدیجہ, جن کے پاس اتنی دولت تھی, جن کا انفلوئنس تھا, وہ بھی کیا ہو گئی, رخصت ہو گئی. تو اب یعنی حضور پاک یعنی اگر آپ ان کی ذاتی حیثیت سے دیکھیں گے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور فیل کریں گے, ٹھیک ہے. ان کے جو قریبی, اس لیے انہوں نے اس کو سال کو کیا کہا ہے, غم کا سال, عامل حزن. اب آگے جو نا کیا کہ حزن کہتے ہیں یا حزن کہتے ہیں, یہ عربی ہے, ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ جیسے دیکھیں نا کہ اب وہ مکہ سے باہر جا کرنا ٹرائی کریں گے کہ باہر جا کے لوگوں کو کیا سکھاؤں, دین سکھاؤں. سمجھ ہے یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو حالات تھے, مکہ کے حالات, ان کو تبلیغ کی, سارا کچھ انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور یہاں کے حالات اب جیسے دو پیارے دنیا سے چلے گئے, اور جن لوگوں پہ انہوں نے ظلم کیا وہ ادھر ہجرت کر گئے, کدھر, حبشہ. اب یہ حالات کچھ اچھے نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کہا, کدھر کو, یعنی مکہ سے باہر کے یعنی کہ جائیں, کسی باہر والے شہر میں جائیں, اور وہاں پر جا کے کیا کریں, تبلیغ کریں. تو آپ نے یعنی کہ ذرا توجہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو علاقہ ہے, ذرا یہ دیکھیں, اس میں آپ کیا کریں گے, یہ دیکھیں کہ یہ والا جو علاقہ ہے یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس کو آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے سعودی عرب کا عربین پیننسولا ہے. عربین پیننسولا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو ہے نا, کہ یہاں پر اگر ہم فرض کرتے ہیں, یہ کیا ہے جی, مکہ. یہ کیا ہے جی, مکہ. تو مکہ سے جیسے ہی آپ تھوڑا سا دور جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی آگے ہو, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر ایک علاقہ ہے, اس کو کہتے ہیں حنین. کیا کہتے ہیں, حنین. اور حنین سے آگے آپ جائیں گے, یاد رکھیے گا, یہاں پر ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے طائف. یہ بناتے جائیے گا, کیا نام ہے, طائف. یعنی مکہ سے تھوڑا سا آگے جائیں, ایک مین علاقہ ہے جس کا نام کیا ہے, حنین ہے, اور حنین سے آگے کیا ہے, طائف. ٹھیک ہے. یہ مطلب آج کل تو خیر یہ بڑے علاقے بن گئے ہیں, یعنی اس وقت بھی یعنی یہ ایک بڑی بستیوں میں کیا ہوتے تھے, شمار ہوتے تھے. یعنی مکہ کی حیثیت خیر اس کے برابر تو یہ نہیں پہنچ سکتے تھے طائف, کیونکہ طائف ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, جبکہ مکہ کیا تھا, ایک بڑا علاقہ تھا, بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. اب یہ جو علاقہ ہے کیا نام ہے, حنین. حاجی حنین. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکھنا ہے نا, اس کو ذرا غور سے لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان جگہوں کو لازمی یاد کر لینا, کیونکہ آگے بھی ضرورت پڑے گی. مکہ ہے, مکہ سے تھوڑا سا آگے جائیں, کیا ہے, حنین ہے, اور حنین سے آگے طائف. یہ اس طرف یہ تین بڑے علاقے ہیں. یاد رکھیے گا جو مکہ ہے نا, اب مکہ کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر مکہ گڑھ ہے, یعنی کہ کس کا, یعنی جس قبیلے کا, اس قبیلے کا نام کیا تھا, قریش. یعنی قریش قبیلہ, یہاں پر قبیلہ ہے قریش کیا تھا, موجود تھا. کہاں پر, مکہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا, کہ آپ اس زمانے کی جغرافی دیکھیں, جو عربین پیننسولا ہے, عربین پیننسولا میں یہ شہر ہے جی, کیا نام ہے, مکہ. مکہ بہت بڑا تجارتی کیا ہے, مرکز ہے, اور بہت بڑا کیا ہے, شہر ہے. اب مکہ کے اوپر یعنی جو سب سے زیادہ جن کا اثر ہے, اس قبیلے کا کیا نام ہے, قبیلہ ہے قریش. اچھا آپ آگے جاتے ہیں تھوڑا سا دیہاتی علاقے کی طرف, تو علاقہ آتا ہے, کیا نام ہے, حنین.
अब देखे ना, हे से हुनैन है और हे से याद रखिएगा यहाँ पर जो कबीला अबाद था उसका नाम क्या था? हवाज़िन कबीला। क्या नाम था जी? हवाज़िन कबीला। हे से हुनैन है और हे से कबीले का नाम क्या है जी? हवाज़िन कबीला। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और आपको याद होगा, ये भी हमने आपको बताया था कि कबीला कुरैश और कबीला हवाज़िन के दरमियान पहले जंगें भी होती रही हैं, ठीक है ना। तो वो जो जंगें होती रही हैं उनको जंगों को कहते थे हरबे फिजार, ठीक है ना, हरबे फिजार। अब हरबे फिजार वो जंगें थी जो हर साल होती थी, ठीक है, और किन के दरमियान होती थी? हवाज़िन और कुरैश के दरमियान होती थी। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जब उनकी उम्र कितनी थी? 15 साल हजूर पाक की उम्र थी और पहली जंग में हिस्सा लिया था जिसको क्या कहते हैं? हरबे फिजार। और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशाहिदा किया कि ये जो जंगें हैं ना, ये मक्का की तिजारत को क्या कर सकती हैं? मुतासिर कर सकती हैं। तो हजूर पाक ने फिर उनके जो हजूर पाक के सच्चे चर्चा थे, क्या नाम थे? हजरत जुबैर के साथ मिलकर हल्फुल फजूल नामी यानी पीस एग्रीमेंट कराया था। कौन सा मुआहदा? हल्फुल और इस आप क्या हो गई थी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो जंग बेसिकली इन्हीं के दरमियान थी, मक्का वालों के दरमियान और बोलो 10 मिनट बाद हवाज़िन और कुरैश कबीले के दरमियान की जंगें। क्लियर है जी? अच्छा, और ये जो हवाज़िन कबीला है ना, ये याद रखिएगा, ये मेन कबीला है जिसको हम कहते हैं ना, ये मेन कबीला। और इसमें से यानी और कबीले निकले हैं, यानी वो आप कहलाएंगे क्या? सब ट्राइब। सब ट्राइब मतलब यह है कि उसकी क्या है? ब्रांचें हैं। मिसाल के तौर पर हवाज़िन कबीला की एक ब्रांच है, उसे क्या कहते हैं? बनो साद। अब बनो साद वो कबीला है जहां से ताल्लुक है हजरत हलीमा सादिया का। हजरत हलीमा सादिया का बात समझ आइए। हजरत हलीमा सादिया, सादिया मतलब किस कबीले से? बनो साद। और बनो साद यानी सब ट्राइब है, सब कबीला। मेन कबीले किसकी? हवाज़िन, हवाज़िन कबीले की। क्लियर है? और इसी तरीके से इस कबीले का एक और ब्रांच लिख लें, उसको कहते हैं, ठीक है, बनु, यानी कि आप कह सकते हैं बनु कह लें, क्योंकि बनु वहाँ यहाँ कबीले वगैरह को कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें सक्फी, क्या नाम है? सक्फी। हम इसको उर्दू में यूं लिख लेते हैं, ठीक है ना, सक्फी कबीला। अब ये जो है ना सक्फी कबीला भी इसी कबीले की क्या है? ब्रांच है। किस कबीले की? हवाज़िन। अब याद रखिएगा कि ये जो सक्फी कबीला है ना, ये वाला, अब सक्फी कबीला आबाद था कहाँ पर? ताइफ में। कहाँ पर आबाद था? ताइफ। ताइफ पर ये सक्फी कबीला आबाद है। और असल जो हवाज़िन कबीला है, इनका बड़ा कबीला, वो कहाँ पर आबाद है? हुनैन में। और मक्का में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया है? कुरैश का। वहां पर और कबीले भी मक्का में आबाद है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना, जिसका असर है उस कबीले का, कबीला है कुरैश का। कबीला कुरैश का असर मक्का के ऊपर क्या था? बहुत ज्यादा था। क्लियर है जी? और हजूर पाक भी का ताल्लुक भी कबीला है कुरैश से था। और बाद में हजूर पाक कबीला कुरैश की एक ब्रांच है, सब ट्राइब है, जिसका नाम क्या है? बनो हाशिम। तो हजूर पाक का असल कबीला, मेन कबीला कुरैश हो गया और सब ट्राइब उसकी ब्रांच बनो हाशिम हो गई। बात मेरी समझ आई या नहीं आई? ओके हो गया। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपको समझ आ गई, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और अहम बताता जाऊँ जो आपने याद रखना है। अब देखें ना, एक गजवा होगा, गजवा वो उसे कहते हैं जिसमें हजूर पाक जिस जंग में क्या हुए हो? शामिल हुए। अब हजूर पाक जब पता करेंगे क्या? मक्का। अब हम कहते हैं ना मक्का देखे ना, मक्का फतह होगा किस हिजरी में? 8 हिजरी में। हिजरत के कौन से साल? 8वें साल। अब 8वें साल जब मक्का क्या होगा? फतह होगा। तो हजूर पाक आप ये देखें, जैसे ही मक्का फतह करेंगे, जैसे ही मक्का फतह करेंगे तो क्या होगा कि मक्का फतह बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन मक्का से कुछ लोग भाग कर क्या, यानी सारे के सारे वहीं पर हथियार डाल देंगे। देखे ना, कुछ लोग भाग कर किधर जाएंगे? हुनैन भी जाएंगे। और हुनैन जो है ना, जो कभी जगह है वो कौन सा कबीला आबाद है? हवाज़िन कबीला। उधर से उनके जो है ना, उसी में से निकले हुए उनके रिश्तेदार कौन से?
तकफी कबीला भी आबाद है कहाँ पर, ताइफ में, वो थोड़ा सा आगे क्या है, ताइफ है। तो ये जो इतने बड़े ताकतवर कबीले हैं, अगर हजूर पाक मक्का फतह करके वापस ऊपर यहाँ पर मदीना है, मदीना चले जाएंगे, तो ये लोग दोबारा मक्का क्या कर लेंगे, फतह कर लेंगे, अटैक कर लेंगे, और मक्का से कुछ लोग भाग कर भी उन्होंने पनाह ली होगी यहाँ पर। तो इसलिए मक्का के फौरन बाद होगा गजवा हुनैन। अब गजवा हुनैन में कौन लड़ेंगे, हवाज़िन वाले, और हवाज़िन वालों का साथ देंगे प्लस कौन, तकफी। अब ये हवाज़िन अकेले थोड़ी लड़ेंगे, हवाज़िन वाले कहेंगे हाँ जी जल्दी आओ, तकफी वालों हमारी क्या करो, मदद करो, वो मदद को पहुंचेंगे। अब हुनैन जब क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, तो अब बारी किन की आएगी, ताइफ वालों की। ताइफ वालों को हजूर पाक कहते हैं, यानी कि ताइफ तो बहुत बड़ा कबीला बाद है, कौन सा, तकफी कबीला। अब इनको छोड़ देंगे तो ठीक है, अब ये भी इन्होंने भी पनाह दे रखी है, और खुद भी ऐसा कबीला है जो इस्लाम के क्या है, खिलाफ है। तो हजूर पाक फौरन फिर हमला कर देंगे किस पे, ताइफ पे। तो अब आप देखें ये तीनों गजवात इकट्ठे होंगे, मक्का फतह होगा, गजवा मक्का, और फिर हुनैन, और फिर गजवा ताइफ, यानी गजवा मक्का, गजवा हुनैन, गजवा ताइफ। और ये सारे किस हिजरी में होंगे, 8 हिजरी। किस हिजरी में होंगे, 8। इन तीनों की तरतीब क्या है, सेम है, समझ आइए ना। तो आपने याद है कि इन तीनों की तरतीब सेम है। हुनैन में लड़ाई होगी किनसे, हवाज़िन और तकफी मिलकर लड़ेंगे, और ताइफ के अंदर कौन लड़ेंगे, तकफी लड़ेंगे, ठीक है। और आप ये देखें जब ये हुनैन जगह फतह हुई थी ना, तो कहा जाता है कि हुनैन का इलाका जब हजूर पाक ने फतह किया तो वहां पर बहुत सारे कैदी बन गए थे, हवाज़िन कबीले के भी कैदी बने थे, और इस कबीले के भी कैदी बने थे, जिसको हम क्या कहते हैं, बनो साद कबीले के लोग भी क्या कैदी बने थे। अब बनो साद वो कबीला है जो इसी हुनैन के इर्द गिर्द इलाके में आबाद हुआ करता था, जहां पर हजूर पाक की इब्तिदाई क्या हुई थी, परवरिश हुई थी। जिंदगी के पहले 4 साल हजूर पाक ने गुजारे थे अपनी अम्मा हजरत अलीमा सादिया के पास। अब आप ये देखें जब हुनैन फतह हुआ तो हजरत अलीमा सादिया आई, ठीक है, हजूर पाक के पास के मेरा जो कबीला है क्या नाम है, बनो साद, लेकिन उन लोगों को आप क्या करते, रिहा कर दिया। हजूर पाक ने फौरन क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अम्मा जी आई है, हजूर पाक ने कहा फौरन क्या कर दो, रिहा कर। यानी अपने कबीले की उन्होंने क्या की थी, सिफारिश की थी और अमान दी थी कि वो आप अमन से रहेंगे, तो आप उनको, तो हजूर पाक ने फौरन, तो हजूर पाक की जो परवरिश है ना, यानी जो बनो साद कबीला था वो भी इधर ही आबाद था हुनैन के आसपास, क्योंकि वो हवाज़िन कबीले की ही क्या था, एक शाख था, समझ आइए ना। उसकी वैसे एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो यही बताई जाती है हुनैन, लेकिन ये है कि क्योंकि वो देहातों में रहते थे तो वो किसी एक जगह नहीं रहते थे, थोड़ा थोड़ा क्या करते रहते थे, मूव करते रहते, समझ आइए ना। लेकिन ये है कि जो उनकी असल जो लोकेशन है वो यही आसपास है, कहाँ पर, हुनैन जो जगह है, ठीक है। इनके दरमियान कई किलोमीटर का फासला, यानी मक्का से आगे हुनैन है और हुनैन से आगे ताइफ। तो ये बात समझ आ गई, बोले आगे। तो अब आप देखें ना कि आपको यानी मिक्स हो नहीं सकता, कैसे मिक्स हो सकती है। ये गजवा मक्का है, उसी के नतीजे में क्या हुआ, आज गजवा हुनैन हुआ, और गजवा हुनैन के बाद गजवा ताइफ होगा, क्योंकि वही ताइफ वाले थोड़े से आके उन्हीं के आजाद है, बनो हवाज़िन वाले लड़ रहे हैं। तो ठीक है, ये देखे ना, हुनैन वाले ताइफ वालों को बना देते हैं, ताइफ वाले हुनैन वालों को बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर एक जंग इनसे भी होगी, एक जंग, और फौरन जंगें होंगी, एक के बाद दिख रही इकट्ठी जंगें होंगी, बात समझ आइए। तो बात इस तरीके से आपने इनको याद रखना है, ओके हो गया जी। तो अब आपको ताइफ की समझ आ गई। अच्छा, अब आगे चलिएगा जी, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, ये देखें कि ये आपने यहाँ तक इसको देख लिया। अच्छा, अब मैंने आपको देखे ना, मैंने अगली बातें भी आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब देखे ना कितना एक आसान है चीजों को याद रखना कि हजूर पाक पैदा हुए, हजूर पाक को मक्का से बेसिकली किस इलाके की तरफ गए थे, हुनैन की तरफ। कि हुनैन का बड़ा कबीला कौन सा है, हवाज़िन, उसकी ब्रांच है, उसका सब ट्राइब है, क्या नाम है, बनो साद कबीले की औरत है, क्या नाम है, हलीमा सादिया। वो वहीं पर रहते हैं, हुनैन वाली जगह पे, हजूर पाक की परवरिश उसी जगह पे, हुनैन के आसपास। हुनैन बहुत बड़ा इलाका है,
बात समझिए ना, देहात है, बहुत बड़े इलाके, देहाती इलाका है, यानी बहुत दूर, यानी कि हजूर पाक को लेकर, यानी कि वो नहीं गए जो अम्मा हलीमा है, यानी ये तकरीबन कोई ज्यादा फासला नहीं है, आप चेक कर लें, 25-30 किलोमीटर के फासले पर ये मतलब बल्कि मील में कहा जाता है ना, 20-25 माइल, क्योंकि माइल ज्यादा नापे जाते हैं, 20-25 माइल से होना है ना, और तकरीबन 7-1 माइल के फासले पर क्या है, ताइफ है, समझ ना, कहने ताइफ इतना होता है जैसे यहाँ से भावलपुर, भावलपुर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, उससे चाहे जरा कम, और रास्ते में आप बस्ती मलूक वगैरह, यानी या उससे थोड़ा सा आगे ये कह लें कि क्या है उन्हें, लेकिन उस जमाने में इतना सफर करना भी इतना आसान नहीं होता था, ठीक है। तो हजूर पाक की परवरिश इतनी दूर करने का मकसद मैंने आपको बताया था कि असल अरबी सिखाना था, याद है ना, ये शहर के अंदर चूंकि ताजर आते थे, जबानों की क्या हो गई थी, मिक्सचर हो गई, तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। चले, तो अब आपने ये याद रखना, अब देखो हुनैन हुई जगह, और फिर इन हुनैन वालों से हजूर पाक की क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है ना, और इन्हीं की ब्रांच है, यानी सब शक्ति जो रहते हैं कहाँ पर, बात समझिए ना। और ये शक्ति कौन है, ये वही कबीला है जहाँ इनसे ताल्लुक है, किनका, मोहम्मद बिन कासिम का, पता है आपको कि मोहम्मद बिन कासिम यही ताइफ के रहने वाले हैं, इन्हीं की नस्ल है। मोहम्मद बिन कासिम लिख लें, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कहाँ का रहने वाला था, ताइफ का रहने वाला था, शक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, शक्ति कौम उसकी शक्ति है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, शक्ति है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम शक्ति जो हमारे यहाँ आया था, हमारे रिश्तेदार चूम चूम के हम यानी कि मतलब कमले हो जाते हैं, हाँ वो यही का था, कार तक भी यही का था, ठीक है ना, आजाद बिन यूसुफ यही का था। नहीं हमारे यहाँ तो इतना एग्जैजरेट कर दिया जाता है, बस बंदा मर बन जाता, यानी शख्सियात को इतना, हालांकि कोई क्या था, जंगजू था, उसने इस इलाके के ऊपर जो फतह किया था, उसके और कई क्या थे, मकासद थे। अब हमारे यहाँ का था पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिसे मोहम्मद बिन कासिम आया था, लाओ जी। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, शक्ति, मोहम्मद बिन कासिम शक्ति, शक्ति शक्ति कबीले का था, बात समझ। तो चलिए एक बैरियर है, जंगजू है, मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। और हजाज बिन यूसुफ जो है ना शख्सियत गुजरी है, उनका वो भतीजा और दामाद है, और हजाज बिन यूसुफ वो है जिसने खाना काबा के ऊपर बमबारी करा दी थी पत्थरों की, सही है ना। तो सर इतना यानी कि वो गंदा था, और उसका जो है ना जो वो भतीजा है वो आप उसको कहते हैं वो बहुत चंगा था, और उसका गंदा था, कुछ ना चलो बंदा कुछ हिसाब क्या रखे, नजदीक नजदीक तो रखे ना, क्या ख्याल है। चले, तो ये थोड़ा तो हमारे यहाँ असल में पता है कुछ राइटर है, जैसे एक राइटर है नसीम इजाजी, हम उसके नॉवल पढ़ते भी हैं। नसीम इजाजी ने हमारी सारी हिस्ट्री को क्या किया है, खराब किया। यानी ये अगर दुनिया में शख्स पैदा ना होता तो हमें इतना झूठ पढ़ने को ना, यानी वो पता नहीं बंदा जाने का मकसद है, पर उसके बंदा थोड़ा सा जो सोच लेती है अल्लाह ताला ने आपको लिखने की ताकत दी है, लेकिन थोड़ा सा क्या लिखते हैं, जो होता है कंपैरिजन करके लिखना चाहिए, समझ आइए। इस तरह तो फिर पता क्या होती है, पुराने जमाने में बुतों की पूजा होती थी, आजकल लोग शख्सियात की पूजा शुरू कर देते हैं। जब शख्सियत को क्या किया जाए बहुत ज्यादा, हाँ मिसाल के तौर पर आप देखिए ना 3 साल आपकी मुर्शिद की हुकूमत रही, आपको नौकरी नहीं मिली, ऐसे है नहीं है, नौकरी नहीं मिली आपको, आप मेरे पास आए बैठे हैं, ये कहते मेरे मुर्शिद जो आप बात नहीं करने, तो मेरे इधर अकेडमी में क्या करने आई हुई अभी, मुर्शिद ने तुझे 3 साल नौकरी नहीं दी, समझ आइए नहीं आई। नहीं मतलब हमारे यहाँ ये है कि अब मतलब बकायदा इसके लिए लोग हायर किए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है शख्सियात को क्या करना, अब जाजिर मुबालगा राई से क्या लेना काम। हमारे यहाँ औरंगजेब आलमगीर टोपियां सीकर गुजारा करता था, उसने सारे अपने भाई सारे भतीजे मार डाले थे, और अपने बाप शाहजहां जिसने वो ताजमहल बनाया था उसको 8 साल कैद में डाल दिया, और कैद तन्हाई में उसकी मौत हुई थी उसके बाद शाहजहां। और औरंगजेब के बारे में हमारी किताबों में क्या लिखा है, टोपियां सीकर गुजारा करता, बनता मुझे टोपियां किस वैसी का था
हाँ ठीक है, आगे चलिएगा, यहाँ पे समझ आगे। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? बत्ती था। कहाँ से ताल्लुक है? ठीक है, वॉरियर थे, जंगजू थे, जो इलाके जिन्होंने क्या किए बताए, ठीक है ना, समझ आइए ना। देखो एक बात याद रखिएगा, पैगंबर में और ये जो इस तरह के बाद में जो सहाबी आए उनमें जमीन आसमान का क्या है? पैगंबर अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खास एक हस्ती को यानी अपने नेक काम के लिए क्या करते हैं? चुनते हैं। पैगंबर आप देखें ना, हुजूर पाक के साथ 4 साल की उम्र में शक्ल सदर का वाक़या पेश आया, यानी उनके दिल को क्या किया गया? यानी कि दिल को धोया गया ना, सीना क्या किया गया ना, किसे धोया गया? आगे जबकि किसान उसमें वक्त से न डाल सकते, ऐसे है ना कि किसान यानी जिस हिस्से में वो गुमराही मतलब इंसान को गुमराह करता है, उस हिस्से को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया, साफ कर दिया। यानी पैगंबर के शुरू से अल्लाह मियाँ क्या कर रहे होते हैं? ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तरबियत कर रहे होते हैं, तो उसमें आगे जाके क्या करना होता है? नेक काम करना होता है। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये आपको समझ आ गया। अब हम यानी वापस आते हैं, तो ये आपने सारा कुछ याद रखना है, और फिर अगर मैं आपसे बोलता जाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। आप देखिए ना कि हुजूर पाक मक्का से किधर आए हैं? ताइफ आए हैं। हुजूर पाक मक्का से किधर आए हैं? ताइफ आए हैं। बात समझ आइए नहीं? ताइफ आए। तो वजह क्या है कि भाई वो मैंने आपको पिछली बता दी कि ताइफ में जी इस्लाम, ताइफ वालों को इस्लाम की क्या दी जाए? दावत दी जाए। तो हुजूर पाक आए और इस सफर में यानी आप याद देते लिख लें, सफरे ताइफ, अरे ठीक है ना, सफरे ताइफ, यानी मैं आपको यानी आप लिख लिया था नहीं, ले जब आप बाद में रिपीट करते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, सफरे ताइफ, और सारे एमसीक्यूज आपने क्या क्या लेने हैं? ज्योग्राफी आपको अच्छे तरीके समझ आ गई इलाके की। हाँ जी, ये आपने याद रखना, क्योंकि फिर आप मैं गज़वात भी पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ आइए नहीं? हाँ जी, चलो तो जो कीजिएगा, तो जैसे बैठा करें। एक इंडिया का टीचर है, तो एक दो टीचर मैं उनको बड़ा देखता था, मैंने कहा यार बड़े अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना, पढ़ाते हैं ये वो। तो हमारे यहाँ जैसे अकेडमी, अच्छा मैंने देखा कि वो टीचर ना ऐसे उसकी एक वीडियो शेयर की हुई थी, उसमें स्टूडेंट को क्या करता गालियां दे रहे थे, समझ आइए ना। तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट जिनको सीधा करने के लिए ना गालियां कम बल्कि जुलितर उतार के मारने चाहिए। अच्छी बात है, ये हमारे माँ बाप ने हमें क्या किया होता है? बिगाड़ा होता है। तो इसलिए ये क्या किया करें कि एक रेगुलर हो के क्लास को क्या करना है? अटेंड करना। अब देखो ना, ये मैंने पढ़ाया है, फिर गज़वात पढ़ाऊंगा, समझ आएगी? नहीं आएगी। तो अब देखिए ना, ये आई है, ये आई है, इसको भी मम्मा ने कहा होगा उतर ना जा, हो सकता है सॉन्ग इसलिए कर दिया हो। हाँ, वो जैसे दूर दूर है, दूर ना जावे है, मलेशिया न जावे, रुल जावेंगी, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये बेचारी उन सारे जज्बात को छोड़ के आ गई। एक आया होगा, ठीक है, नहीं आएगा, सर आज क्या कर अंदाज देकर कैसा बीमार था, उसने कहा वो करना जाए, करना भी उसको छोड़ देता, ज्यादा बीमार हो जाता। अब याद रखिएगा उधर कौन जा रहे हैं? एक जा रहे हैं हुजूर पाक और साथ उनके है हजरत ज़ैद बिन हजरत ज़ैद बिन, यानी सफर ताइफ में कितने अशखास जा रहे हैं? 2। एक हुजूर पाक खुद और उनके साथ उनके मुंह बोले बेटे गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा। हाँ जी, इसकी तारीफ किया। ये बता हजरत ज़ैद बिन हारिसा का तस्करा किस कुरान पर किस सूरत में है? अज़ाब में। मेरे अल्फाज भी जाए कितने याद होना चाहिए। फिर वाहिद साहब हैं जिनका जिक्र किधर है? कुरान पाक में। किस सूरत में है? अज़ाब, सूरह अज़ाब में। अज़ाब में मुंह बोले बेटे का जिक्र अज़ाब में, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को मुंह बोले बेटा, ठीक है। और भी इनकी जो इन्होंने तलाक दी थी, सारे वाक़यात याद है ना? और किस सूरह में? सूरह अज़ाब। अच्छा जी, दोनों पहुंच गए वहां पर। और कितने दिन रहे? 10। ताइफ में 10 दिन रहे। कितने दिन रहे? 10 दिन। उन्होंने इस्लाम कबूल किया? नो। ये जो ताइफ वाले हैं ना शक्ति, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। नो, नहीं किया। समझ आइए ना? क्योंकि अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते तो क्या ग़ज़वा ताइफ होता? बात मेरी समझिए ना।
کہ غزوہ طائف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہوگا نا کیونکہ یہ لوگ اسلام کے کیا تھے؟ ہاں جی دشمن تھے اسلام، ٹھیک ہے نا؟ اسلام سے منکر تھے، اسلام کو مانتے نہیں تھے، اس لیے غزوہ طائف ہوگا بعد میں، کلیئر ہے؟ دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی۔ اب کیا ہوا؟ الٹا انہوں نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مارے؟ پتھر مارے، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، باش نوجوان نوجوان ان کو انہوں نے کیا مارے؟ حضور پاک کیا ہو گئے؟ لہو لہان۔ حضور پاک کیا ہو گئے؟ لہو۔ یاد رکھیں ایک اسلامیات پہ نا میں ایک آپ کو تو میری عادت ہے میں پڑھاتا ہوں، ایک تو میں انالیسس کرتا ہوں اس کو جغرافی کے حساب سے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہر پوائنٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیپر میں آیا ہوتا ہے، تو آپ غور سے سنا کریں، سمجھ رہیے نا؟ حضور پاک کیا ہو گئے؟ لہو لہان۔ جو آج اسلامیات سنتے ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہے نا اس کے اندر یہ فیکشن فگر نہیں بتایا جاتا، وہ اس میں جذبات تھی اس طرح کا کہ حضور پاک لہو لہان ہو گیا، پتھر بول پڑا، پھر پتھر یعنی پتھر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتہ چلے کہ 1 گھنٹہ وہ پتھر کے بارے میں بتا رہے ہیں جی۔ یعنی ہمارے ہاں بڑا بہت زیادہ کیا کیا جاتا ہے، جذبات بھی شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ کیا ہے بالکل کیسے میں نے ایسے بتایا کہ حالات کچھ اچھے نہیں تھے، تو آپ یہ دیکھیں قدرتی طور پر نیچرل ہے کہ حضور پاک دوسرے شہر کا کیا کریں گے؟ رخ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور طائف کا، اور یہاں پر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، انہوں نے پتھر مار کر کیا کر دیا؟ لہو لہان کر دیا۔ اب لہو لہان کر دیا نا، اسی موقع پر آئے کون؟ حضرت جبرائیل۔ اس جادوئی بٹن پر ٹیپ کرنا ہے اور یوز دس ساؤنڈ دبا کے رکھنا ہے اور کچھ اس پرکار کا میجک ہوگا۔ اگر تمہیں وشواس نہیں ہو رہا ہے میری باتوں پر تو بیٹا تم خود ہی کر کے دیکھ۔ This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. جب پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اس کی بستی والے اس کو تنگ کرتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں تو وہ فوراً بعد دعا دیتے ہیں اور وہ بستی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب حضور پاک کا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، تو اس لیے حضور پاک کو کہا جاتا ہے کیا؟ رحمت لیل عالم، رحمت لیل عالم، یعنی یہ رحمت یعنی چیز کا نا رحمت لیل عالم، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں نا حضور پاک نے کیا کیا؟ درگزر کیا، درگزر سے کام لیا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھے نا؟ رحمت ہے، حضور پاک نے رحمت بن کر آئے، رحمت عالمین ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بستی تباہ نہیں کر۔ اور آپ یہ دیکھیں پھر یہی وہ بستی ہے یعنی جہاں سے یعنی مختلف قسم کے آپ خالی یعنی کہ محمد بن قاسم کی مثال دینے کافی نہیں ہے، اور محمد بن قاسم کو اتنا زیادہ جزا کی ریت کرنے کی ضرورت نہیں،
क्योंकि ताइफ से भी अगर मोहम्मद बिन कासिम रवाना होते हैं तो बाकी इलाकों से भी तो मुसलमान रवाना हुए हैं ना, मक्का से निकले, मदीना से निकले, यानी हजूर पाक ने जो दीन फैलाया था वो तो एक मक्का की बस्ती में लेकर आए थे, मक्का छोटे में शहर था, और वहां से इतना दीन जो फैला है ये तो उसमें खाली मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ी फैलाया, बात समझिए ना। तो ये सबकी यानी किसने क्या है, यानी हजूर पाक की जो उम्मत है सबकी क्या है उसमें कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हजूर पाक के पैगाम को आगे पहुंचाया, बात समझिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ताइफ है यानी यहाँ से और भी कई जर्नैल निकले और उनमें से एक एग्जाम्पल है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक भी कहाँ से है, ओके है जी। बोले यानी ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया है ये भी हजूर पाक की दुआ में यानी कि इसका नाम भी क्या है शामिल है। तो हजूर पाक ने इस बस्ती को क्या दी थी, दुआ दी थी, बस्ती कायम रहे और इस बस्ती से ऐसे मुसलमान पैदा होंगे जो दुनिया में इस्लाम को तक कब्जा करेंगे, गुलामी करेंगे, लहराएंगे, बहुत सारे निकले। एक एग्जाम्पल है मोहम्मद बिन, बात समझ आई, बात समझ आ गई। अच्छा हजूर पाक जब लहूलुहान थे, लेकिन हमें बात को मुख्तसर करते हैं इसलिए एक बात करते हैं जितना पेपर में आता है। तो हजूर पाक ने एक अंगूरों के बाग में बना ली थी, जिसमें बना ली अंगूरों के बाग में, और वहां पर एक नौकर था, क्या नाम था, अदास। अदास ने अंगूरों का गुच्छा हजूर पाक को क्या किया, उन्हें गिफ्ट किया, यानी वो वहां पर काम करता था किस बाग में, अंगूरों के बाग में, और अदास ने अंगूरों का गुच्छा क्या किया, गिफ्ट किया। लक्ष्मी थे ना, उसने कहा अंगूरों का गिफ्ट वो गुच्छा दिया, चलो मेरे पास में सोफे को क्या कर दीजिए दिया, और अबू हमने से बना ली थी, बना ली बाद अंगूरों के बाद में बना ली, और वहां क्या नाम था अदास, उसने वो क्या पेश किया, अंगूर की, बात समझ आई। अब ज्यादा डिटेल यानी कि इधर उधर की इतनी करने की जरूरत है नहीं है, मुख्तसर बात है जो आपको समझ आती है। ओके हो गया। अब मुझे ये बताइए था कि हजूर पाक किधर गए थे, बोले हाँ जी ताइफ की बस्ती में गए, और वहां पर कितने अंदर रहे, 10 दिन। आज उनके साथ कौन था, बोले और देखे कि 10 दिन रहे और उन्होंने दावत कबूल की नहीं कि पहाड़ों के दरमियान वादी की क्या कहते हैं, और हजूर पाक ने दुआ ने दी क्या दी, हालांकि लोगों ने हजूर पाक को क्या दिया था, आप देखा आज उनकी उम्मत है कितनी जज्बातियों की देखती है, जबकि हजूर पाक ने अब हजूर पाक को जिसने तकलीफ भी पहुंचाई हजूर पाक ने उसके बदले में उसको क्या दी, दुआ दी, समझे। तो यानी ये जो कंसेप्ट है ना असल में, मतलब आज भी मैं देख रहा था कि हमारे स्टूडेंट है, तो ये मतलब इस मतलब से है, यानी जो अभी जो मुहर्रम आया है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा यानी आजकल दो एक बहुत बड़े हमारे ग्रुप है ना, एक सुन्नी कम्युनिटी या दूसरी शिया कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने एक फेसबुक पे शेयर किया हुआ था, बड़ा अच्छा शेयर करते हैं, कहते हैं कि आजकल के देखे ना हम उस यजीद को गाली देते हैं जो मर चुका है, जो जिंदा यजीद है उनको गाली कोई नहीं देता, समझ रहे ना। अगर उस यजीद को भी गाली देनी चाहिए, और साथ जो मौजूद है यानी कुछ रूप है प्यार किया हुआ है, तो ये इनको भी पेश कर देते हैं, ऐसे है नहीं है। और अगर उस वक्त हजरत हुसैन एक मजलूम थे, तो आज भी कई मजलूम है बेचारे जो जुल्म करता है शिकार है, उनके लिए क्या उठानी चाहिए, समझ रहे ना। ये हम कहते हैं ना कि आज अगर हम उस दिन होते तो हजरत इमाम हुसैन की क्या करते, मदद करते, यही हमारी ख्वाहिश है ना। तो नहीं आज के दौर में जो मजलूम है उनकी मदद कौन करेगा, और उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वही जाहिर रखते, समझ रहे उसी निस्बत। तो ये एक यानी कि होता है, बात समझ रहे
اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھیں حضور پاک رحمت بن کر آئے تھے, ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں یعنی کیا بننا چاہیے, رحمت بننا چاہیے, سمجھا؟ ہاں تو میں آپ کو جیسے اپنی مایوسی تھی, اب مایوسی کیا ہو گئی, بڑھ گئی. اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے, سوچیں کوئی نہ کوئی اگر معجزہ ہو جائے اچھا نہیں ہوگا. جب حالات اچھے نہ چل رہے ہوں تو پھر ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے, کوئی معجزہ ہونا چاہیے. تو پھر ایک معجزہ ہوا, اور وہ معجزہ ان تمام برے حالات کو اچھے حالات میں کنورٹ کر دے گا. یعنی اسلام کا ایک اچھا سنہری دور کیا ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا, لکھے گا. یعنی اب کیا ہوگا, بولے معجزہ ہوگا. دیکھنے جی پہلے آپ لکھیں کیا ہوگا جی, معجزہ ہوگا. اور معجزے کا نام کیا ہے, واقعہ ہے میرا, واقعہ ہے میرا. آج معجزہ ہوگا, کیا نام ہے, واقعہ ہے میرا. چلو کلیئر ہے جی, سمجھ آ گیا نا. ایسا ایسا حالات مریض کو ہوتے ہوتے پھر اچانک کیا ہوگا, معجزہ ہوگا. اور معجزہ جو ہے نا یہ کہ ساری بازی کیا کرے گا, اوکے ہے جی, ٹھیک ہے نا. اور ایک نئی ڈائریکشن دے گا جس سے اسلام کو بہت زیادہ کیا پہنچے گا, آ جاتا ہے. واقعہ میرا اچھا ہے, ذرا سنیے گا, ٹھیک ہے. تو میں ذرا اوپر لے دیتا ہوں. یہ لیتے ہیں واقعہ ہے میرا, توجہ کیجیے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یعنی جو اس میں ہے نا, جو واقعات یا جو فیکٹس ہے نا, ان کو آپ نے ذرا غور سے دیکھیں. یہ بلکہ میں نے ادھر اسی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اسی کو دیکھ لیں, یا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ یہ ادھر دیکھ لیں, یہ تھوڑا بڑا کر کے ساتھ بناتے ہیں. یہ ہے جی کیا, مکہ. کیا ہے جی, مکہ. اور آپ پڑھ کیا رہے ہیں, واقعہ ہے میرا, واقعہ مراج, واقعہ مراج. اگر کہتا واقعہ مراج, مراج سے مراد کا حضور پاک کا بولے ہیں معجزہ. کیا ہے واقعہ مراج, یہ شہر ہے جس کا نام ہے مکہ. مکہ شہر میں یاد رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ام ہانی جو کہ حضرت علی کی کیا ہے, بہن ہے, ان کے گھر سوئے ہوئے ہیں. حضرت پاک جن کے گھر مہمان ہیں, حضرت ام ہانی. حضرت ام ہانی کے گھر یعنی ان کی کزن ہے نا حضرت ام ہانی. حضرت ام ہانی حضرت علی کی کیا ہے, بہن ہے. لیکن ان کے گھر حضرت پاک کیا ہے, بولے مہمان ہے. تو مطلب یہ اگر آپ وہیں پر کیا ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. بات سمجھ آئیے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک وہیں پر سوئے ہوئے ہیں, اور تو جہاں پر سوئے ہوئے ہیں جس کمرے میں, تو دروازہ بجتا ہے, اور وہیں پر باہر کون کھڑے ہیں جی, دروازے کے باہر حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل, اور حضرت جبرائیل اکیلے نہیں ہے, حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک گھوڑا بھی ہے, اور اس کا نام کیا ہے, براق. براق کیا ہے, ایک گھوڑا, گھوڑا بھی موجود ہے. حضرت جبرائیل ساتھ گھوڑا بھی لے کے آئے ہیں, کیا نام ہے, براق. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں, حضور پاک کہتے ہیں کیا حکم ہے, کہتے ہیں حکم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے پاس آسمان پر. اب حکم بڑے گھر سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, اللہ سے. حضور پاک فوراً کیا ہو جائیں گے, روانہ ہو جائیں. یعنی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بستر کو
थोड़ा साइड पे कर दो बिस्तर को लपेट फौरन ही क्या हो जाएंगे, रवाना हो। कहते हैं जी उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं जी, तैयारी करें। तो यहीं से वो रवाना हो गए। तो अब ये देखिए ये बुराक घोड़ा किन के लिए है? हाँ जी बोले, बुराक घोड़े पर कौन सवार होंगे? हजूर पाक, ठीक है ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु बुराक घोड़े पर क्या होंगे? सवार होंगे। हजरत जिब्रील वो जो है ये कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हजरत जिब्रील ये क्या है, पार है, याद रखिए उनके पार कितने थे? 600 पार थे। कितने पार थे? 600 पार थे। वो वैसे ही परों को जो हिलाते थे और बड़ा लंबा सफर तय कर लेते थे, कोई मसला नहीं था। ये देखें मक्का से ना, ये देखें सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे ना ऊपर, ये जो इलाका है यानी जिसका नाम फलस्तीन आजकल क्या कहते हैं? इसराइल। क्या कहते हैं? इसराइल। अब इसराइल के यानी पास अब उसने कब्जा कर रखा है, फलस्तीनियों का भी कब्जा है जिस शहर के ऊपर, ठीक है, उस शहर का नाम क्या है? यरूशलेम। ठीक है, और यरूशलेम के मैंने क्या है जी वहां पर क्या मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा के साथ है जी मैंने बताया था आपको डोम ऑफ रॉक। क्या है? डोम ऑफ रॉक। और डोम ऑफ रॉक यानी रॉक ये वही चट्टान है जहाँ से यानी हजूर पाक यानी मक्का से इस चट्टान तक पहुंचे। क्या नाम है? रॉक। यानी मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा के साथ इस रॉक का। अब इस रॉक से जाने जाए कि ये चट्टान है ना, इससे हजूर पाक का सफर होगा ऊपर किसकी तरफ? आसमान की तरफ। अब आसमानों की तरफ हजूर पाक का जो सफर होगा, आप याद रखिएगा ऐसे एक आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और सातवें आसमान पे जिस मकान तक यानी आगे जाएंगे, इस मकान से भी आगे चले जाएंगे, इस जगह का नाम क्या है? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा। याद रखिएगा कि हजूर पाक मक्का से ये मस्जिद अक्सा जो कि कहाँ पर है? यरूशलेम का। ये जो सफर है ना, इस सफर को कहते हैं सफर असरा। क्या कहते हैं? असरा। और यानी यरूशलेम में वो जगह जहाँ पर बना हुआ डोम ऑफ रॉक, यानी रॉक वो चट्टान है जहाँ से हजूर पाक ऊपर आसमानों की तरफ जाए और सिदरतुल मुंतहा तक जाएंगे। अब रॉक से सिदरतुल मुंतहा का जो सफर है इसे क्या कहते हैं? मेराज। इसे क्या कहते हैं? मेराज। तो याद रखिएगा जो मेराज सफर है ना, बेसिकली बहुत अच्छा के साथ जो रॉक में मौजूद है ना, वहां से हजूर पाक जाए थे कहाँ तक? सिदरतुल मुंतहा का क्या? मेराज। और मक्का से यानी यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा तक का जो सफर है उसे क्या कहते हैं? आज बोले सफर असरा। असरा कहते हैं। तो मक्का से यरूशलेम पहले मस्जिद अक्सा तक इसको असरा कहते हैं। और जो है ना यरूशलेम से यरूशलेम में जो जगह रात है, चट्टान है, डोम ऑफ रॉक, वहां से सिदरतुल मुंतहा तक जो सफर है उसे क्या कहते हैं? बोले सफर मेराज। मेराज कहते हैं। आप चलेंगे सफर मेराज लिखने, ठीक है ना, सफर मेराज। चलेंगे ओके हो गया जी। आज वो सफर मेराज हो गया। अब हजूर पाक अब देखो ना, ये जो मस्जिद अक्सा के साथ वो जो बना हुआ डोम ऑफ रॉक, वो इतना बड़ा डोम है कि उसने काफी सारी जगह घेरी हुई है और उसने उस रॉक को भी घेर रखा है। इब्न उमय्या ने बनाया था, आज बताया था आपको। रॉक यानी कि उस रॉक भी वहीं पर है जिस चट्टान से हजूर पाक गए थे, किधर को? सिदरतुल मुंतहा। और यहीं से सफर शुरू हुआ था। सफर का नाम क्या? सफर मेराज। तो अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि मेराज क्या है, बेसिकली मेराज क्या कहेंगे? सफर का एक नाम है। और उससे पहले हजूर पाक ने जो सफर किया था उसे क्या कहते हैं? सफर असरा। सफर असरा समझ आइए। इसके बारे में पेपर में ज्यादा नहीं आता, यानी कि हमारे यहाँ ओवरऑल कहा जाता है वाक्य मेराज लिखना, लेकिन मैंने आपको बेहतर करके बता दिया। अब हजूर पाक यानी देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो पहले आसमान पर पहुंचेंगे तो लिखिएगा कि पहले आसमान पर जो उनकी मुलाकात होगी वो किन से होगी? ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो आसमान है
ये आप तरह लिखते जाए, पहले आसमान पर, याद रखिए जाइए देखो, पहला आसमान, पहले आसमान पर उनकी मुलाकात होगी किन से? हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यानी हजरत आदम इस दुनिया से जाने के बाद कहाँ पर मौजूद है? पहले आसमान पर। अच्छा, उसके बाद आएगा कौन सा आसमान? दूसरा, दूसरे आसमान पर कौन मौजूद है जी? हजरत, हाँ जी, ईसा और प्लस उनके कजन हजरत याया, हजरत ईसा और हजरत याया, हजरत ईसा और हजरत याया, यानी ठीक है ना, क्योंकि ये देखे ना इकट्ठे ही है ना, हजरत याया है और हजरत याया के बाद पैगंबर बने थे हजरत ईसा। तो किस आसमान पर मौजूद है? दूसरे पर। अच्छा, फिर कौन सा आसमान आएगा? तीसरा, तीसरे आसमान पर यानी कि दो पैगंबर है जो बाप बेटा है, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ, हजरत यूसुफ। और चौथे आसमान पर हजूर पाक की मुलाकात हुई किससे? हजरत अदरीस से, याद है नहीं है? पढ़ाया था। अच्छा, उसके बाद आएगा कौन सा आसमान? पांचवा, पांचवें आसमान पर उनकी मुलाकात हुई किनसे? हजरत हारून से, जो कि हजरत मूसा के क्या थे? बड़े भाई। और फिर पहुंचेंगे किस आसमान पर? छठे पर। छठे पर जो है ना यह है कि मौजूद है जी कौन? हजरत मूसा, कौन जी? हजरत मूसा। और सातवें आसमान पर पहुंचे तो सातवें आसमान पर मौजूद है हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। तो इस तरह उनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। ठीक है, तो पहले आसमान पे हजरत आदम, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत इकट्ठे हैं, ये कजन कहलाते हैं आपस में ना, ठीक है ना, क्योंकि एक मतलब कजन से मराजिए कि करीबी है ना एक दूसरे के, क्या बड़े करीबी है। कजन का लफ्ज वैसी बार बहुत जनरल यूज होता है। और तीसरे पे हजरत याकूब और उनका बेटा क्या? हजरत यूसुफ। और चौथे हजरत अदरीस। और पांचवें कौन? हजरत हारून। और छठे पर हजरत मूसा। और सातवें पर हजरत इब्राहिम मौजूद है। ठीक है, लिख लिया जी? चले, ठीक हो गया जी? चले, तो ये अब हजूर पाक जहाँ पहुंचे हैं किस तरफ? यानी कि आसमान पर, बोले सातवें आसमान पर। आप कहते हैं यही वो आसमान है सातवां, ठीक है ना, जो कि आसमान यानी कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। आखिर कौन सा आसमान है? आखिरी आसमान है। अब यानी हजूर पाक जब यहाँ पर पहुंचे ना इस आसमान पर, सातवें आसमान पर, तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक इमारत मौजूद है और उस इमारत का नाम है बैतुल मामूर, बैतुल मामूर। अब बैतुल मामूर क्या है? याद रखिएगा, बैतुल मामूर जैसे जमीन के ऊपर मौजूद है क्या? खाना काबा कहते हैं। खाना काबा की क्या है? कापी है, नकल है। यानी जैसे खाना काबा है ना वैसे ही मौजूद है वहां पर, क्या नाम है? बैतुल मामूर, बैतुल मामूर। और बैतुल मामूर, अब जैसे खाना काबा का क्या होता है? बोलो, तवाफ होता है। तो ऐसे बैतुल मामूर का भी क्या होता है? तवाफ होता है। कहते हैं वहां पर 70,000 फरिश्ते, ठीक है ना, लिख लें, 70,000 फरिश्ते बैक वक्त क्या करते हैं? इबादत करते हैं, या दूसरे लफ्जों में क्या करते हैं? तवाफ करते हैं। अब देखो फरिश्तों की तादाद, यानी हमारे यहाँ तो हज के मौके पर भी ऐसे ही होता है ना, लोगों की क्या होती है? एक लिमिट होती है, एक खास लिमिट से ज्यादा लोग चले जाएं तो वो संभालने क्या हो जाते हैं? मुश्किल हो जाते हैं। तो अब यानी कि ये देखना, फिर हमारे यहाँ कुछ लोगों की गुंजाइश निकलती है, नहीं निकलती है, तो इस वजह से ठीक है ना, बहुत कम लोग हैं जो वहां पर जा पाते हैं। लेकिन फरिश्तों के लिए तो कोई मसला नहीं है, फरिश्ते तो सारे रेडी खड़े हैं तवाफ करने के लिए। किसका? बैतुल मामूर का। तो वो ऐसे टाइम कितना तवाफ करते हैं? 70,000। अब 70,000 तादाद ज्यादा कम है फरिश्तों की असल तादाद के मुकाबले में, कम है, न होने के बराबर है। 70,000 तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा फरिश्तों की तादाद अरबों में है। तो अब क्या कहते हैं? फरिश्तों की दोबारा बारी नहीं आती, एक है ना, कि एक दफा ही यानी 70,000 फरिश्ते बैक वक्त वो तवाफ करते हैं, तो फरिश्ते उसकी पूरी जिंदगी में उसकी क्या आती है? एक दफा बारी आती है और उनको दोबारा बारी नहीं आती, ठीक है ना। अगर उनको एक दफा इबादत करने का मौका मिलता है और दोबारा इबादत करने का मौका नहीं मिलता, न ऐसे ना इबादत करते जाते हैं और अभी तक दूसरों की बारी ही नहीं आ रही। ठीक हो गया जी? अच्छा,
अब ये है जी क्या बैत मामूर, मामूर, ठीक है। अब बैतुल मामूर तक जो है ना ये तो जाते थे, अब उससे आगे गए ना हजूर पास तो कहते हैं जी आगे जो है ना जाके जन्नत दोज़ख वगैरह सभी है, और एक इस जगह पहुंचे जिसको क्या कहते हैं सिदरत मुंतहा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद यहाँ पर निशानी ये है कि बेरी का क्या है दरख्त है, यानी इसकी निशानी क्या है, कौन सा दरख्त है जी, बेरी का दरख्त है। बेरी नहीं होती, बेर खाते हैं हम, ठीक है ना, तो बेरी का दरख्त है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोग यानी कि दरख्तों को खा जाते हैं, ठीक है ना, तो आजकल बेरी नजर ही नहीं आती है, बेरी का दरख्त है वो जगह। तो यहाँ पर कहते हैं ना सिदरतुल मुंतहा, ठीक है ना। सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या मतलब यह है कि मुंतहा का मतलब है इंतहाई यानी आखिरी, यानी कि आखिरी जगह, आखिरी कोना, समझे ना, बिल्कुल एंड में पहुंच गए। और वहां पर ये कहते हैं कि हजरत जो जिब्रील थे ना उनके पैर क्या हो गए, जल गए। उनके पैर क्यों जले, क्योंकि ऐसे जा रहे थे, कहते हजरत पाक और जिब्रील आपस में गपशप करते हुए, हजरत जिब्रील को पता ही नहीं चला और वो इस मकाम से आगे चले गए। अब इस मकाम से आगे नहीं जाना चाहिए था किनको, हजरत जिब्रील को, तो इसलिए उनके पैर क्या हो गए थे, जल गए। उन्होंने हजरत जिब्रील ने फिर उधर ही रोक गए और हजूर पाक को कहा कि इससे आगे हजूर पाक क्या जाएंगे, अकेले जाए, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु इससे आगे अकेले जाए सिदरतुल मुंतहा से आगे। और सिदरतुल मुंतहा से जब आगे गए ना तो वहीं पर उनकी मुलाकात हुई किनसे, उन्हें अल्लाह ताला से मुलाकात। सिदरतुल मुंतहा से यानी जहाँ पर जो मुलाकात है वो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, वहां पर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। और वो आपने ऐसे सुन रखा होगा कि वहीं पर ही क्या हुआ कि हजूर पाक को शुरू में कितने नमाजों का तोहफा मिला, 50 नमाजों का तोहफा मिला, लेकिन यह कि हजूर पाक फिर वो 50 नमाजों का तोहफा बारात लेके आए। शुरू में कितने नमाजों का तोहफा मिला, 50। और जब वापस आए तो इन्होंने यानी कहा कि कम कराए, किन्होंने, हजरत मूसा ने कहा कि कम कराओ, 50 नमाजें हैं ज्यादा। तो हजूर पाक ने फिर जाए, कई लोग कहते हैं कि बार बार जाए, नहीं जाना जो भी है, तो 50 से फिर कितनी नमाजें हो गई, 5। तो याद रखिएगा इस तरह जाना जाए कि पहले 50 नमाजें का तोहफा मिला, फिर बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। और जिन्होंने मैंने कहा था कम कराए, हजरत मूसा ने कहा, ठीक है। कहा जाए तो नमाजें कब पढ़ गई, 5 बज गई। वाक्य है मेराज के मौके पर, लेकिन वाक्य मेराज के मौके पर 5 वक्त नमाजें पढ़, 5 वक्त की नमाजें कब पढ़ गई, बोले वाक्य है मेराज, वाक्य मेराज किस मौके पर बोले, और लेकिन ये नबूवत का 10वां साल है, नबूवत का कौन सा साल है, 10वां साल। लेकिन मेरे पेपर में यूं आ जाए नमाज में नबूवत के कौन से साल पढ़ गई, नबूवत के 10वें साल, ठीक है। वो कहीं 11वां आता हो तो वो उसको भी दिया, वो ऐसे ही गलत दिया है, जो सही है करेक्ट है वो क्या है, नबूवत का 10वां साल। वाक़या मेराज का पेश है नबूवत के 10वें साल। और जो है ना ये है कि नबूवत के 10वां साल नमाज में कब पढ़ गई, नबूवत के 10वें साल। या यूं कहना वाक्य है मेराज के, वाक्य मेराज किस दिन पेश आया था, किस डेट एग्जैक्ट आ जाए, मतलब डेट क्या है, हाँ जी बोले 22 रजब, हाँ जी 22 रजब को पेश आया, 22 रजब, 22 रजब। अरे देखो ना वाक्य मेराज है, डेट क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। ये मुकरमा बैठी है, इसको याद भी नहीं है। अगर तभी अपनी सहेली से कह रही थी, मैं तो सोच रही हूँ हमारे और खरीद लूं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। डेट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पीछे बैठी होगी आज क्लास के बाद से, ये सारी मुझे डेट याद नहीं होती, डेट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, समझ गए ना। आज अब आप ये कहेंगे सर इनको क्यों नहीं कहते जो पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनको तो छोड़ो, तो किसी को काटते के नहीं रहे है। पठान ऑटो की चाय पी पी कर सुभान अल्लाह की
बुरा हाल हुआ पड़ा उनका। आज कौन सी डेट है? 250 कितने इमामों का दफा मिला? हाँ जी, पहले 50 फिर कम करके 5। वो मुख्तलिफ घुमा फिरा के दे आपसे बात क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इस वाक्य का जो तस्करा है ना सूरह यानी कि मतलब मुख्तलिफ सूरतों में है, सूरह बनी इसराइल में है, खास तौर पर लिखने वाक्य मेराज का तस्करा किसमें सूरह है? बनी इसराइल में भी है, वाक्य मेराज का तस्करा सूरह बनी इसराइल में भी है। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, मैंने आज भी टेस्ट आपको दिया है, तो टेस्ट आपको लाजमी किया भी करें और टेस्ट में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना उनको नोट कर लिया करें, क्योंकि मेरे ध्यान में कोई क्वेश्चन आते हैं ना बाद में, जब मैं टेस्ट बना रहा होता हूँ तो मैं फिर ऐड कर देता हूँ, क्लियर है? तो आप यानी तो अपने नोट में ऐड भी कर दिया करें। तो किस सूरह में सूरह है? बोले हाँ जी, बनी है इसराइल, बनी इसराइल में भी है और भी है सूरतें, ठीक है, वो पाँच पर देख लीजिएगा। तो बात समझ आ गई? आप जरा कर देख रहे हैं, अब मेरे पास की कराएंगे वापस गाड़ी में थे कहाँ आए थे, जहाँ से रवाना हुए थे भाई? मेरे मस्जिद अक्सा पहुंचे, आप मस्जिद अक्सा पहुंचे मेरे पास, तो मुझे ये बताएं जब कोई मेहमान ऊपर जाता है, जैसे तो आप लोगों से पूछ रहे हैं है हाँ गुरु जाना दुआ मांगता है अल्लाह के मेहमान ना आ जाए, ठीक है? चलो वैसे मैं पूछ लेता हूँ, अगर मेहमान आए तो मेहमान को छोड़ने कहाँ जाते हैं? दरवाजे तक जाना चाहिए ना, है ऐसे है नहीं? ये बैठी हुई कहते हैं मेरे नहीं ड्रामा बेटो रात में नहीं जाना चाहिए, ऐसे है नहीं है? चलो अब ये बताया कि हजूर पाक जो आए हैं मेहमान थे, तो उनको छोड़ने बाकी पैगंबर नीचे नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो हजूर पाक पहुंचे मस्जिद अक्सा, तो सारे पैगंबर भी पहुंच गए किधर? मस्जिद अक्सा के एटलीस्ट उनको मस्जिद अक्सा तक तो कहे ना क्या खुदा से। तो पूरे पैगंबर है कितने? 1,24,000। तो 1,24,000 वहां नंबर किनका है? आखिरी पैगंबर का हजरत मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि बाकी जो पैगंबर है 1,23,999 वो तो उनसे पहले चले गए और वो इधर आसमानों पर क्या है मौजूद है। तो वो सारे इनको सी ऑफ करने के लिए किधर है? मस्जिद अक्सा। अब मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगंबर ऐसे टाइम क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इस मौके पर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर वो अल्लाह ताला की जो इबादत की ये उन्होंने नमाज की सूरत में, तो उसकी इमामत किन्होंने कराई? हजूर पाक से। बात समझ लो ना, वो आपने बात पढ़ा हो देख लें। तो यहीं पर वो सारे खुदा कहने के लिए तो मस्जिद अक्सा में यहीं पर यानी जो हमें कहा जाता है, जो हमारे यहाँ यानी कि हम पढ़ते रहते हैं, तो यहीं पर यानी 1,24,000 पैगंबर इकट्ठे हुए और हजूर पाक ने बाकी पैगंबरों की क्या कराई? नमाज कराई, इमामत यानी इन्होंने पहले हमारे मेहमान है वो इमाम बने, उनकी इमामत में या उनकी सरबराही में सबने मिलकर क्या की? अल्लाह ताला की आपने कहीं कहीं इधर पढ़ा होगा, कहीं इधर पढ़ा होगा, कहीं इधर पढ़ा होगा, तो सारे चीजें आपस में क्या हो रही होंगी? ओके अभी चलो जी, फिर वापस किधर आ जाएंगे? अपने घर के घर आज को मेहरानी के घर। अब एक बार पेपर में आ गया कि हजूर पाक ने सबसे पहले वाक्य मेराज किसको सुनाया? लॉजिकल क्या बनता है, किनको सुनाया होगा? तो जिनके घर मेहमान थे कौन? हजरत उम्मे हानी। हजरत उम्मे हानी जैसे गए, ठीक है ना, जैसे ना अचानक गए, अचानक आ भी गए, लेकिन जिनके घर है सुबह नाश्ता करेंगे वहीं पर रहेंगे, तो वहीं पर उनकी कजन है, उन्हें तो सबसे पहले सुनाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले बात किया कि भाई उनके पास एक वाक्य पेश है रात को, तो उन्हीं को हाल वाल सुनाएंगे। तो इसलिए लॉजिकल है, इसका जवाब भी यही बनता है। तो आप चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल देखा करें, कुछ गलत है नहीं होगा। देख लें आज हजूर पाक ने ये वाक्य किसको पहले सुनाया? हजरत को उम्मे हानी को। लेकिन ये जो वाक्य है ये कितनी देर में हुआ? तो ये चंद लम्हों में हुआ था, क्योंकि जमीन पर जो वक्त है वो क्या हो गया था?
ठहर गया था और बाकी बात में हजूर पाक से चलता रहा था। जब आसमानों पर वक्त करे कि जमीन का वाक़या हो गया था, रुक गया था, ये आपने याद रखना है। और इस कहा जाता है इस बात की जो तस्दीक है वो इन्होंने की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, इसलिए उनको क्या कहते हैं सदीक, इसलिए कहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हजूर पाक सच्चे हैं और बाकी लोगों ने मैंने कहा था कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने तस्दीक की थी इसलिए इनको कहा गया था सदीक। वाक़ मेराज की तस्दीक इन्होंने की थी, बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अभी हो गया ना क्या लेंगे। तो ये नबूवत का कौन सा साल हो गया, 10वां साल हो गया, वाक़या यहाँ तक क्या हो गए कंप्लीट। ओके है जी, अब आगे चलते आपने हेडिंग दे दें या मैंने तो ऐसी हेडिंग आपको देना ताकि आपको याद रहे ना। मैंने मदीना हिजरत मदीना से पहले के वाक़यात या इस तरह की हेडिंग जो अच्छी खूबसूरत हो ना, है मैंने ऐसे लिखने हिजरत मदीना से पहले के वाक़यात, ऐसे लिखने हिजरत मदीना से पहले के वाक़यात। असल में मैं आपको कहता हूँ ना कि जब आप इसको जरा समराइज करें ना तो फिर हमें जरा हिजरत मदीना से आज पहले के वाक़यात यानी बिल्कुल पहले की जो वाक़यात हुए मिलेगा जी। चलो तो जरा वो पूछेगा हिजरत मदीना से पहले। अच्छा ये जो दरमियान वाला पीरियड है ना हिजरत मदीना से जो पहले 3 साल वाक़यात हुए ये भी मिक्स हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आते, यहाँ पर कनेक्टिव रहती है। तो आप जरा नजर कीजिएगा, इनको भी मैं जरा अगले से कराऊंगा। चलेगा जी। अब आप ये देखें कि वाक़या में राज हो गया। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मौजूद है मक्का में, तो ये देखते हैं हिजरत का अब हिजरत हुई नहीं है, नबूवत का 11वां साल, लेकिन नबूवत का कौन सा साल है 11वां। नबूवत के 11वें साल क्या बात से पेश आता है, ये आप ऊपर बेशक नहीं रखा, ये देखते ना भाई मैंने लिखा ना हिजरत मदीना से पहले के वाक़यात। तो हिजरत मदीना कब होगी आप नहीं देख रहे ना, हिजरत मदीना होगी नबूवत के 13वें साल, नबूवत के 13वें साल। उससे पहले के जो वाक़यात है नबूवत का कौन सा साल 11वां, फिर नबूवत का 12वां और फिर नबूवत के 13 जब साल शुरू होगा उससे पहले शुरू के वाक़यात और फिर उसी साल में अगले वाक़या कर जाएंगे हिजरत कर जाएंगे, समझ आएंगे। तो अब इन वाक़यात का जो ताल्लुक है ना वो मदीना के साथ है। मैंने नबूवत का 11वां 12वां और 13 साल ये जो हजूर पाक से रिलेटेड जो वाक़या है उनका ताल्लुक किसके साथ है मदीना के साथ है। अब होता क्या है ये देखें, अब ये जो आपका ये देखते ना ये एक वो है यहाँ पर अरेबियन मरनकुला मक्का है और यहाँ पर क्या है मदीना। अब मदीना से मक्का की तरफ नबूवत के 11वें साल 6 लोग आए, कितने लोग आए 6 लोग और उन्होंने कबूल कर लिया क्या, देखिए नबूवत के 11वें साल 6 लोग आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज इन 6 लोगों का ताल्लुक कहाँ से है, उन्हें मदीना से 6 लोग आए और क्या कबूल कर लिया इस्लाम, ठीक है। अब यानी जो सबसे पहले मदीना का वो बंदा ठीक है ना मदीना का जिसने कबूल किया इस्लाम उसका नाम है जी सुवैद बिन सामित। सुवैद बिन सामित वो मदीना का पहला शख्स है जिसने क्या कबूल किया इस्लाम कबूल किया। ये आप याद रखिएगा क्या नाम है सुवैद
स्वाद से भी लिखा जाता है, तो मैं स्वाद से लिखता हूँ। ये मैंने देखा है एक दफा सीन से भी आया हुआ है। स्वाद लेने बोले सामने, स्वाद लेने सामने तो लिख लें स्वाद, स्वाद लेने बोले सामने, स्वाद लेने सामने। ये कहाँ का है? मदीना का है, जिसने सबसे पहले क्या कबूल किया इस्लाम। तो नबूवत के 11वें साल कितने लोगों ने? 6 लोगों ने। अच्छा, अगला साल नबूवत का बोले 12वां साल। दोबारा बोलने नाम क्या बोला मैंने? नबूवत का 12वां साल। 12वां साल 12 लोग कहाँ से आए? मदीना से। और क्या कबूल कर लिया? इस्लाम। नबूवत के 12वें साल 12 लोग आए और क्या कबूल कर लिया? इस्लाम को। लेकिन इनके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है कि अब हालात हो रहे थे खराब। कहाँ थे? मक्का थे। हजूर पाक के लिए वहां पर जिंदगी गुजारना आसान नहीं था। तो इन लोगों ने आए ना 12 लोग, इन्होंने एक तो कबूल किया था इस्लाम, और साथ ही हजूर पाक को क्या दिया? एक अहद दिया, प्रॉमिस दिया कि अगर आपको मक्का में खतरा है तो आप चुप करके इधर आ जाए, मदीना आ जाए, हम आपकी जान पूजा करेंगे, हिफाजत करेंगे। तो याद रखिएगा हजूर हाथ पे क्या की उन्होंने? बैत की। और किसको कहते हैं? बैत उकबाए ऊला। हाँ जी, ऊला पहले, अब चली तो होने दो, खाने तक पहुंच गई है। हाँ, बैत उकबाए ऊला। ऊला मतलब पहली। उकबा, उकबा उस जगह का क्या है? नाम, यानी मक्का के नजदीक वो जगह है। और ऊला का मतलब सबसे पहली। और बैत किसे कहते हैं? लेकिन बैत कहते हैं जी क्या करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बैत में होता क्या है? जैसे हमारे यहाँ आजकल हम वोट देते हैं ना, वोट और बैत में अच्छा खासा क्या है? फर्क है। पहली बात ये याद रखिएगा, वोट में सिर्फ और सिर्फ आप दूसरे को अख्तियार देते हैं, वोट दे देते हैं, तो आपके बिहार से चंद फैसले कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का फैसला उसमें नहीं होता, एक महदूद अख्तियार होता है। बैत में तो आप क्या करते हैं? पूरी की पूरी बैत में आप उनकी लॉयल्टी की, आप सपोर्ट और हर तरह की उसको अपना उसको क्या देते हैं कि हर लिहाज से हम आपकी क्या है साथ। उन्होंने यानी कि हजूर पाक से क्या की? बोले इनके हाथ से क्या की? बैत। मैंने हजूर पाक को कहा कि कल आखिरी जान में आप बख्शिश किया, आप हमारी कराएंगे की। बैत का जो मीनिंग है वो क्या है? बहुत ज्यादा। बहरहाल आप मुख्तसर क्या याद रखेंगे कि हजूर पाक को अपनी सपोर्ट यानी हिमायत का उन्होंने क्या दिलाया? बोले यकीन दिलाया। इसी सपोर्ट को क्या कहते हैं? बैत की। कितने लोगों ने बैत की? आज आए कहाँ से है? मदीना से। और किस जगह पे बैत हुई? उकबा जगह पे। मैं कहना बैत का उकबा है ऊला। चलो जी, अब हजूर पाक को बैत मिलने से सपोर्ट मिल गई। साथ ही इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि हजूर वाला आप भेज दें किनको? आप किसी सहाबी को भेज दें और वहां पर मदीना में बड़ी अच्छा जरूरत है कि वहां पर लोगों को क्या दी जाए? दीन की दावा दी जाए। तो हजूर पाक ने इनके कहने पर हजरत कीजिएगा हजरत मक्का बिन उमैर, हजरत मक्का बिन उमैर। लेकिन हजरत मक्का बिन उमैर को किधर भेजा? मदीना पे। हजरत मक्का बिन उमैर को मकसद क्या है? तबलीग। हजरत मक्का बिन उमैर को मसअब क्या है जी? बोले मक्का बिन उमैर को भेजा किधर? मदीना भेजा। ओके है जी। अब मुझे ये बताया अगर मक्का बिन उमैर को भेजा तो हजूर पाक ने क्या पहले जो बात किया था उसमें हजूर पाक ने किसी को भेजा है? अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी जितने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको लग रहा है पहले
शख्स हैं, ये पहले साहबी हैं जिनको हजूर पाक ने मक्का से दूसरे शहर भेजा, किधर? मदीना। मदीना जो है ना वो अच्छा खासा दूर है, इतना दूर है जैसे यहाँ से लाहौर है, यानी आपका मुल्तान है और उधर से लाहौर है, जितना फासला है ना इससे भी थोड़ा सा फासला ज्यादा बनता है। मक्का मदीना एक दूसरे के नजदीक नहीं है, समझ रहे ना? बेशक लिख लें कि मक्का मदीना से 300 मील दूर है, ये तो पेपर में आता है, अभी फिर इसको अब किलोमीटर कन्वर्ट करते हैं। मक्का मदीना से कितना है? आज लिख लें 300 मील, ये तो पेपर में आता है, मीलों में आता है, 300 मील दूर है। क्या मक्का किससे? मदीना से। और मैंने आपको वो पहले समझाया था, पढ़ाया था कि ये देखें, एक जो माइल होता है ना वो होता है 1.61 किलोमीटर के, उसका देखा जाए तो तकरीबन ये कितना बनता है? 360 किलोमीटर। तो ये तकरीबन उतना बनता है जितना मुल्तान और सॉरी 360 नहीं, 460 क्या बनेगा? किलोमीटर बनेगा। तो आपका मुल्तान और लाहौर का फासला इससे कम बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। यानी मक्का मदीना इससे भी थोड़ा सा क्या है दूर है। जो लोग जाते हैं ना तो मक्का और फिर मदीना जाते हैं, अच्छा खासा क्या लगता है? टाइम लगता है। तो 460 किलोमीटर फासला, और मीलों में कितना होगा? 360। हमारे जो पेपरों में आता है ना वो मीलों में आता है, सिंपल आएगा 300 मील। तो आपने ये भी याद रखना है कि मील है या किलोमीटर है? किलोमीटर है। ओके है जी, समझ आइए। बाकी तो बात मैंने समझा दी, लेकिन ये कहना कि इसको गौर करना है, इसको गौर करना है, मेरे ख्याल में शायद ये बात मैं नहीं अपना गला खुश किया है। हाँ, मतलब यह है कि आज मॉर्निंग वाला ग्रुप था ना, मैंने उसमें मैसेज किया है, 2 दफा शेयर किया है जिसमें ग्रुप में, उसको पिन भी किया मैसेज को, ताकि इसको जब भी जैसे ग्रुप खोले हुए नजर आए। उसके बावजूद भी मेरे साथ क्लास नहीं है। अल्लाह मैसेज रास्ते करके बताओ मुझे। ये कल रास्ते बंद थे, आज मैं सब्जी लेने गया, सब्जी नहीं मिली। अंदाजा लगा क्यों नहीं मिली? क्योंकि रास्ते क्या थे? बंद थे, मंडी में सब्जी आई, ग्रुप नहीं पहुंच सके। हमारे वहां कहाँ से पहुंची? फिजिकल बात से सुबह वाले फिर मैसेज किया, दोनों मैसेज किया, गौर नहीं चाहिए, इधर गौर नहीं चाहिए, इधर गौर करेंगे पेपर में जाके। यानी ये गौर ऐसी क्या चीज है उस टाइम जाने तो वो ढेर सारा हो जाएगा, यानी कि वो गौर है। ठीक है ना, जितने साल 1 साल हो गया मुलाकात ही नहीं हुई, और जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन गौर भाग के आ जाएगा। यानी इंसान को अपनी आदतें क्या करनी पड़ती है? ठीक करनी पड़ती है, बेहतर करनी पड़ती है, ठीक है ना। तभी एक तरबियत की क्या होती है, जरूरत होती है। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, जितना गौर और खोज करेंगे, उतना इस चीजों को समझना क्या हो जाएगा, आसानी। तो बात समझ आइए। आप जरा मुझे अच्छी चीज बताया हजरत मक्का बिन उमैर के बारे में। पहली बात, हजूर पाक से हम शक्ल है। हजरत मक्का बिन उमैर क्या हजूर पाक से लिखे जाए हम शक्ल, हम शक्ल मतलब हाँ जी, शक्ल दोनों की क्या थी? एक जैसी हम शक्ल। हाँ जी, क्या है हम शक्ल? और यहीं पर मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी याद कराता जाऊँ, क्योंकि हम शक्ल है इसलिए क्या होगा कि अच्छा ये हजरत मक्का बिन उमैर गज़वा उहद में क्या हुए? शहीद हुए। लिख लें, गज़वा उहद में शहीद हुए कौन? हजरत मक्का बिन उमैर गज़वा उहद में शहीद हुए। अब गज़वा उहद जब होगा उसमें शहीद होंगे तो हजूर पाक की क्या है? हम शक्ल। तो गलती से यानी कि इनके जो शहीद होने से, यानी मतलब इनकी जो शहादत है कि जना हो जाएगी, तो लोग गलती से ये समझेंगे कि इनकी शहादत हुई है हजूर पाक। और शुरू में कुछ देर लोग ने यही समझा था, जबकि फिर बाद में एक बंदे ने बताया कि नहीं, हजूर पाक मौजूद है और हजूर पाक के जो हम शक्ल है कौन? मक्का बिन उमैर, वो दुनिया से
लड़ाई हो रही थी ना अचानक उस टाइम मौके, तो ये ओहद में क्या हो गए थे, हजूर पाक क्या थे। अब इनको हजूर पाक ने भेजा मदीना। तो आप ये बताइएगा कि आजकल के दौर में जब एक अब उस जमाने में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि जो शहर होते थे ना उनकी हैसियत मुल्कों जैसी होती थी। हाँ जी, कुर्सियां चले जाए। हाँ जी, तो शहरों की जो हैसियत होती थी कैसी होती थी, मुल्क जैसी होती थी। तो मुझे ये बताइएगा कि एक मुल्क से जब दूसरे एक मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं या एक मुल्क का बंदा एक नुमाइंदा बनकर दूसरे मुल्क जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सफीर कहते हैं। तो मक्का बिन उमैर को हम क्या कहेंगे, सफीर, मक्का का सफीर। मक्का का तो क्योंकि मक्का में तो हुकूमत नहीं थी, हजूर पाक थी। तो हजूर पाक का जो मतलब है यानी कि हजूर पाक ने जो दीन हम तक पहुंचाया कौन था, मतलब इस्लाम। तो इस्लाम के ये क्या है, पहले सफीर, लेकिन इस्लाम के पहले सफीर है। इस्लाम के पहले सफीर। अब ये वहां पर जाके पढ़ाएंगे क्या इस्लाम, जो पढ़ाता है वो क्या कहते हैं, उस्ताद। इस्लाम पहला उस्ताद मसहब में इनको पहला उस्ताद भी कहा जाता है इस्लाम का, जो बकायदा तौर पर पढ़ाने के लिए जाए। इस्लाम का पहला उस्ताद, इस्लाम का पहला सफीर, इस्लाम का पहला दाई। दाई मतलब दावत देने वाला। यानी ये असल में कहा जाता है कि दूसरे शहर में जाकर किस तरह कहा जाता है, समझ रहे ना। तो बकायदा तौर पर कहा जाए ना कि हजरत वसल्लम ने ही हम तक रखा है ना, हजूर पाक के बाद की ये शख्सियत के बारे में कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लिखा ऐसे जाता है, समझ रहे ना। हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले जो तबलीग दीन हम तक पहुंचाया, हमें पढ़ाया, वो तो खुद कौन है, हजूर पाक वसल्लम है। तो लेकिन मुराद ये दिया जाता है कि अदर देन होली प्रॉफिट, तो बेसिकली ये मुराद होता है। बात समझ रहे हैं। इस्लाम का पहला सफीर कौन है, इस्लाम का पहला उस्ताद, इस्लाम का पहला दाई। हम दाई कौन है, क्या है, दावत देने वाला, पहला मुबल्लिग। आपने याद रखना ये सारे इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, किनके साथ, अगर मतलब देना चलेगी। अब आएगा नबूवत का कौन सा साल, 13वां साल, नबूवत का 13वां साल, नबूवत का 13वां साल। यहाँ पर भी यानी कि दो ऑप्शन आते हैं। तो वैसे लिखने तो यानी 75 लोगों ने आकर कबूल किया था इस्लाम, नबूवत के 13वें साल 75 लोगों ने कहा। यानी अब तो बात क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों है, अगर मतलब उमैर ने ज़ाहिर वहां पर क्या की होगी, तबलीग की होगी। तो नबूवत के 13वें साल अगले साल 70 लोगों ने आकर इस्लाम, कितने साल नबूवत के, और इन 75 लोगों ने अगेन यही की क्या, बैत उक़बा। अब उसको क्या कहेंगे, बैत उक़बा सानी। तो लिख लें इसी उला की जगह आप लिख लें सानी, बैत उक़बा सानी। मतलब इसमें बैत अगेन मुराद क्या है, क्या यकीन दिलाएंगे, हिमायत का, सपोर्ट का यकीन दिलाएंगे। बैत मतलब सपोर्ट, हिमायत। अभी क्या हुई, बैत उक़बा है ओके हो गया बोले। ये आपने याद रखना, बैत उक़बा उला है नबूवत के 12वें साल और बैत उक़बा सानी है नबूवत के 13वें। उसमें 12 लोग हैं, उसमें यह सारे कहाँ के, अब आप देखें हालात तकरीबन साफ साफ नजर आ रहे हैं कि हजूर पाक मक्का से किधर जाने वाले हैं, मदीना जाने वाले। यानी अब ये बात क्या हो चुकी थी, बिल्कुल बात ही ओके है जी। चलो
तो अब हम जो है ना ये बात करेंगे सफर मदीना की तरफ, कि मदीना की तरफ जो सफर होगा उसकी बात करते हैं। ये देखें, ठीक है। और फिर आगे हमारे मम्मा को कहा कहना आंटी हमें आपको बुला। ये देखें, ये क्या है? यमन, ये क्या है? मक्का, और ये क्या है? मम्मा आप आपको याद होगा, मक्का मदीना से